Good morning, students. Let's see the information of the lecture first and then we'll continue. Date November 13, 2020, class 8th, subject English. And the book we are reading, students, is Communicate with Cambridge. Unit 5, Section B. Right? This is Unit 5 is the marvels of medicines. That means we are learning the things related to the medicines, the wonders did the medicines basically, right, with the human beings. And this section B we are reading is influenza. It's a kind of flu or disease which was named influenza. And this is lecture number 2, students. Lecture number 2 means we completed half of the part or some part of the chapter before in the lecture number 1. Though it is very small text, this will be finished in the same lecture on which we are just right now we are studying. So the first line up to of this page, the first line we completed in the last lecture. Though I would speak, began to report incidents of the disease. चेन्नई ने जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स शो की इंसिडेंट्स की जो ये डिजीज को लेकर के वहां पर हुए. Let's continue. Unfortunately, several of India's best doctors were serving in the British Army at this time. Now you see, children, दुर्भाग्यवश क्या होता है, unfortunately, that several, unfortunately, ये word जो है, this you need to just note down in your notebook before you start writing your question answers in the notebook. You need to write its word meaning there, right? Now you see the several of India's best doctors were serving in the British Army at this time. इस समय जो है, जो ये समय चल रहा था, उस समय जो इंडिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे. This made it very difficult for the country, और इसकी वजह से कंट्री के अंदर कंट्री को जो है, हमारे देश को जो है, बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा. Very difficult to cope with the massive outbreak of the disease. जो इतने बड़े स्तर पर ये डिजीज फैली थी, उसको डील आउट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, मेडिसिन को डेवलप करने के लिए, जो पेशेंट्स थे उनको टेक केयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. Some historians believe that over 16 million people in India died of the disease between June 1918 and July 1919. See, students, it is the 1 year time basically. And in 1 year time, some historians means itihaaskar, they tell us, they बिलीव दैट, उनका विश्वास है कि भाई इस एक साल के दौरान between June 1918 and July 1919, India got its 16 million people died. 16 million means more than 1.5 crore people. 1 million is equal to 10 lakh. Then 16 million means 1.6 crore people died in India during this particular period, students. So the same thing we are facing in today also. I think you all are familiar about this coronavirus, that we are all helpless except using masks and just sanitizing our body, hands especially, and just keep ourselves at home, right? So such same type of problem was this. Now we see the next one. It has been estimated that the influenza pandemic claimed over 70 million lives all over the world. It has been estimated that the influenza pandemic, अभी जो influenza pandemic थी, लगभग 70 million lives all over the world, means like 7 crore. 70 million is equal to 7 crore people died all over the world because of this influenza pandemic. In India alone, the number of people killed by the influenza
was higher than the total number of people killed during the First World War. Now you see students के जो ये पैंडेमिक थी कितनी हॉरिबल पैंडेमिक थी, जितने लोग जो है पूरे वर्ल्ड के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे थे ना, उससे कहीं ज्यादा लोग जो है इस बीमारी से इंडिया में मरे थे. दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड जो ये इन्फ्लुएंजा डिजीज थी कितनी हॉरिफिक डिजीज थी, कितनी खतरनाक बीमारी थी ये, जिसकी वजह से कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इतने लोग नहीं मरे थे, इतनी जनसंख्या में लोग नहीं मरे थे, पीपल नहीं डाई हुए थे जितने की इस बीमारी की वजह से केवल इंडिया के अंदर मरे थे. Some historians recall how this epidemic almost extinguished the basic human desire to help those in need. अब हिस्टोरियंस जो इतिहासकार है वो बताते हैं, रिकॉल करते हैं, याद करते हैं उन दिनों को कि कैसे हाउ दिस एपिडेमिक, कि कैसे इस महामारी ने एक्सटिंग्विश कर दिया था. एक्सटिंग्विश मीन्स होता है लुप्त कर देना, कंप्लीटली रिमूव कर देना, फिनिश कर देना लोगों की इच्छाओं को एक दूसरे की हेल्प करने के लिए. नाउ वी कैन सी द प्रेजेंट सिनेरियो आल्सो. If someone is found in the locality that the coronavirus patient, we don't even like to go his or her home or meet people or get in touch. So the same thing was there at that time. People did not even feel to help the one who's patient. Adults free of the disease were so alarmed. Adults free of the disease, so alarmed by its symptoms. जो अडल्ट थे, जो मीन्स जो बड़े थे, वो मतलब अपने आप को उन्होंने अपने आप को बचा करके रखा इस भयानक अलार्म सिचुएशन से जो थी. बाय इट्स सिम्टम्स, जो इसके सिम्टम्स थे वो क्या थे? रिब क्रैकिंग, हड्डियों का टूटना, कफिंग स्पेल्स, खांसी का होना कंटिन्यूसली, इंटेंस बॉडी एक, पूरे शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द होना, अ डीप ब्लू स्किन, और बॉडी का जो है बहुत ही गहरा नीला हो जाना कलर, और फ्रॉथिंग. फ्रॉथिंग मीन्स होता है बबल्स ऑफ स्लाइवा अपीयरिंग ऑन द लिप्स एंड एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, यानी कि माउथ के कॉर्नर में थूक आया रहता है, राइट. जो स्लाइवा हमारी लार जो होती है वो बाहर की तरफ निकली होती है. और फ्रॉथिंग का मीनिंग है स्टूडेंट्स, दैट्स गिवन इन द बुक आल्सो, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. और बबल्स आए रहते हैं मुंह के ऊपर, जिससे कि पर्सन जो है वो सही नहीं है, द वन हु इज नॉट इन अ गुड स्टेट एट द माउथ, बेसिकली मुंह में बेसिक, राइट. सो देयर व्हाट वी गेट कि भाई किस तरह से सिचुएशन होती थी लोगों की, दैट दे वुडंट इवन लुक एट देयर नेबर्स. और वो जो है वो कहता है कि दैट दे वुडंट इवन लुक एट देयर नेबर्स की तरफ भी नहीं देखते थे वो, लेट अलोन हेल्प देम. और सिचुएशन क्या होती थी कि उनको अपने आप अपनी हेल्प करने दो, जो उनके आसपास पड़ोस में रहते थे वो भी हेल्प नहीं कर पाते थे. Some of the sick and their children simply starved to death from lack of attention and care. अब now what we find here, some of the sick and their children, कुछ जो है बीमार थे, and the children जो उनके बच्चे थे, simply starved. Starved means भूखे मर रहे थे, to death, death से, from lack of attention. Lack of attention means टेक केयर किए बगैर, ध्यान दिए बगैर जो बच्चे थे उनका बहुत ही ज्यादा बीमारी बढ़ती जा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा बीमार होते जा रहे थे. Throughout the world there was a strong sense of doom. पूरे संसार के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर जहां जहां पर भी लोग रह रहे थे, कयामत सी आ गई थी. डूम मीन्स होता है कयामत आ जाना, नॉट अ गुड डे फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, राइट. विक्टर वेगन, एन एमिनेंट सर्जन, एक सर्जन के बारे में जो कि डॉक्टर है, declared, उन्होंने क्या अनाउंस किया, if the epidemic continues its mathematical rate of acceleration. Acceleration means होता है स्टूडेंट्स कि an increase in how fast something is taking place, कि जितनी तेजी से ये महामारी बढ़ती जा रही है, मैथमेटिकल रेट मीन्स कि बढ़ती जा रही है, जो कैलकुलेशन जो है
Civilization could easily disappear from the face of the earth within a few weeks. कुछ ही हफ्तों के अंदर, विद इन अ फ्यू वीक्स, कहता है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन मीन्स द लिविंग बीइंग ऑफ द पीपल और ह्यूमन बींग्स, राइट, वो डिसअपियर हो जाएंगे इस धरती पर से कुछ ही हफ्तों के अंदर, अगर इसी तरह से कैलकुलेशंस चलती रही. People felt so scared that cities became virtual ghost towns. और लोगों को ये महसूस होने लगा, डरने लगे लोग कि जो सिटीज थी ना, वो ऐसा लगने लगे कि ये भूतों का जो है शहर है, टाउन है. फोटोग्राफ्स टेकन एट द टाइम शो डेजर्टेड स्ट्रीट्स. कुछ फोटोग्राफ्स ली गई हैं जिसमें जो दिखाया गया है कि जो शहर की गलियां थी वो वीरान पड़ी हुई थी. डेजर्टेड स्ट्रीट्स मींस वीरान गलियां थी. जस्ट अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द एम्बुलेंस. उन गलियों में जो है कुछ मेंबर्स तो एम्बुलेंस के होते थे. एम्बुलेंस क्रू मींस जो एम्बुलेंस को लेकर के जाते हैं कुछ पीपल, क्रू. और सिटी वर्कर्स या फिर सिटी में काम करने वाले वो वर्कर्स थे जो क्लीननेस और वर्किंग करते हैं. इंगेज्ड इन एसेंशियल वर्क्स. और एसेंशियल वर्क्स के अंदर वो इंगेज थे. ऑल ऑफ देम कैन बी सीन वियरिंग मास्क. और उन सबको जो देखा जा सकता है मास्क पहने हुए. Laws were passed to try to control physical contact between people to check the spread of the disease. अब all of them can be seen, वो कहते हैं कि इन सबको देखा जा सकता था जो मास्क पहने रहते थे. लॉज वर पास्ड टू ट्राई टू कंट्रोल. कानून बनाए गए ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, फिजिकली कांटेक्ट किया जा सके लोगों के साथ, बिटवीन पीपल टू चेक द स्प्रेड ऑफ डिजीज, कि भाई ये बीमारी कैसे फैल रही है, किसके से इसके सिम्टम्स हैं, कैसे इसको डील आउट किया जाए ताकि लोग एक दूसरे से मिल सके. इस तरह का सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश की गई. इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर क्या हुआ, इट बिकेम अ क्राइम इवन टू शेक हैंड्स. एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना भी जो है लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम बना दिया गया कि अगर आप किसी के साथ शेक हैंड कर रहे हो, सो दैट इज द क्राइम एंड यू विल बी सेंटेंस्ड फॉर दैट. आपको सजा दी जाएगी कानून के तहत शेक हैंड करना, बिकॉज ऑफ द एपिडेमिक ओनली, इस महामारी की वजह से. इवन in more recent times, many places have been affected by variant strains of the influenza virus, such as the bird flu virus and H1N1. और कई चीजों का क्या हुआ इन मोर रिसेंट टाइम्स, उन्हीं के हाल ही के समय में कुछ जगहों पर क्या हुआ, एक वायरस का नाम हुआ. वो बताते हैं कि वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट स्ट्रेन्स मींस होता है प्रेशर ऑफ समथिंग. ये बड़ा प्रेशर था लोगों के ऊपर, कई जगहों के ऊपर, कि भाई ये इन्फ्लुएंजा का वायरस, जैसे कि सच है, जैसे होता है कि बर्ड फ्लू हो गया और H1N1, ये वायरस, दीज आर द डिजीज नेम्स और वायरस बेसिकली जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं. In some countries, the measures taken to contain the outbreaks have been severe. In some countries, कई देशों में तो क्या होता है, the measure taken to contain the outbreaks have been severe. यानी कि कंट्रोल करने के लिए जो जो एक्टिविटीज की गई, और वो बताते हैं कि कई कंट्रियों में तो ये बड़ा सीवियर, बड़ी भयानक तरीके से जो है फूट पड़ा था लोगों के ऊपर, जो है ह्यूमन बींग्स को जो है बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था. पीपल हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रैवलिंग. लोगों को ट्रेवल करने से रोका जाने लगा. Well, this is all familiar, students, with us also, because for the last 7 to 8 months we have been living in the pandemic, right? This corona pandemic. So the same things were taking place as you have just witnessed before you. You all have witnessed it. Say for the last 7 to 8 months we have been living at home. Yeah, we weren't able to travel and we weren't able to shake hands, to meet people, to go anywhere, right, everyone? So the same things were taking place there at the time also. Sorry. Uh, and teachers entering schools had to have their temperatures
इफ द टीचर्स आर कमिंग टू स्कूल, उनका टेम्परेचर चेक होता था। जैसे आजकल भी हमारे पास जो है थर्मोमीटर्स होते हैं जिनमें टेम्परेचर चेक होता है, बॉडी टेम्परेचर। बोटल्स ऑफ स्टेरिलाइजिंग, और बोटल्स ऑफ स्टेरिलाइजिंग आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, जो ये हैंड वॉश आता है, क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेरिलाइजिंग मीन्स इट इज यूज्ड फॉर किलिंग जर्म्स। इस तरह का लिक्विड और केमिकल यूज होता है जिससे कि हम अपने हैंड्स को रिपीटेडली वॉश करते हैं, जिससे जर्म्स जो है फिनिश हो जाते हैं। हैंड वॉश हैव बीन मेड फ्रीली अवेलेबल, ये अवेलेबल कराया गया फ्री लोगों के लिए, एंड मैंडेटरी टू यूज इन पब्लिक बिल्डिंग्स। और जो बिजनेस की पब्लिक बिल्डिंग्स थी ऑफिशियल, और इनमें ये सारे का सारा जो है ऑफिशियली यूज किया जाने लगा। Few people believe that the pandemic on the scale of 1918 could ever happen again, although we must always be on our guard. लोगों का ये विश्वास था कि ये पेंडेमिक जो 1918 में आई है, ये किसी भी टाइम दोबारा भी आ सकती है। सो इसलिए हमें अपने आप को जो है सुरक्षित करना है। गार्ड करना मीन्स सुरक्षित करना है, हमें अपने आप को जो है सुरक्षित करना है, सेफ करना है। The most serious threat seems to be posed by the forms of bird flu. और इसमें से जो मोस्ट थ्रेट्स जो थी, जो सबसे बड़ी खतरे की बात थी, वो क्या थी कि दैट वाज जो बर्ड फ्लू था, उसकी जो फॉर्म थी वो भी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, थ्रेटनिंग थी, जो बिल्कुल एकदम से ओपन थ्रेट जिसको हम लोग बोल देते हैं, खतरा जिसको हम लोग बोलते हैं। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड साइमल्टेनियसली बाय एन एवियन वायरस, एवियन वायरस इज द नेम ऑफ द डिजीज, कि अगर कोई एक पर्सन जो है इन्फेक्ट हो चुका है साथ ही एवियन वायरस है एंड अ ह्यूमन फ्लू वायरस, और एक ह्यूमन फ्लू वायरस, द टू माइक्रोब्स, इन दोनों माइक्रोब्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स an extremely small thing that you can only see under a microscope. ये जो वायरस थे इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता था। The two microbes can combine their genetic, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो ये अपने जेनेटिक को कंबाइन कर लेते हैं, material inside a cell and create a new strain of influenza, और इंसान के सेल के अंदर मिल करके ये अपना न्यू स्ट्रेन क्रिएट करते हैं जिसको जो है इन्फ्लुएंजा कहा जाने लगा। दैट बिकेम द इन्फ्लुएंजा। क्या था ये, एक तो था बर्ड फ्लू और एक था एवियन वायरस। दोनों सेल के अंदर जब मिक्स होते हैं एंड दे जनरेट देयर जेनेटिक एंड दैट बिकम्स द इन्फ्लुएंजा, और वो जो है इन्फ्लुएंजा बन जाता है। राइट एवरीवन, possibly one that could not only jump back and forth between different species but would also be invulnerable to the human immune response. संभावना थी, पॉसिबली वो कहते हैं, one that could only jump back and forth between the species, यानी कि वो कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल पॉसिबल था कि भाई अगर कोई एक को ये हो जाती है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंट स्पीसीज, कुछ स्पीसीज की वो बातें कर रहा है, वुड ऑल्सो बी इनवल्नरेबल टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, और इंसानों का जो ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम होता है जिससे कि हमारी बॉडी वर्कआउट करती है, it all the functions of the body take place or work together, that's the immune system of the body, that will also be affected. We see lots of these cross strain viral इंट्रैक्शंस इन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है इसको लेकर के काफी इंट्रैक्शंस देखी गई, क्रॉस स्ट्रेन वायरल को लेकर के। सम एक्सपर्ट्स कॉल इट वायरल चैटर। कुछ जो है एक्सपर्ट्स जो हैं कुछ एक्सपर्ट्स जो है क्या कहते हैं, उसको वायरल चैटर कहते हैं। वायरल चैटर क्या होता है स्टूडेंट्स, इट हैज बीन कंपेयर्ड विद अ टेररिस्ट चैटर। टेररिस्ट चैटर के साथ इसको कंपेयर किया गया है, दैट गोज ऑन ओवर एयर वेव्स, हवा से फैलने वाला वायरस था,
जो हवा चलती है एयर वेव्स उससे डिटेक्ट होता है बाय दोज लिसनिंग इन विच व्यू टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल टेररिस्ट एक्टिविटी दैट माइट बी लाइंग जस्ट अहेड। जो हवा में सिग्नल्स होते हैं, जब टेररिस्ट एक दूसरे को सिग्नल करते हैं हवा में, और उनके उन सिग्नल्स को जो है बाय द मिलिट्री फोर्सेस उनको पकड़ा जाता है, और विद द हेल्प ऑफ द सिग्नल्स उन टेररिस्ट को अटैक किया जाता है, पकड़ा जाता है। सो ये जो वायरस था, वायरल चैटर जो था, उसकी तरह था, हवा से फैलने वाला रोग था ये। अगर कोई उस एयर के अंदर आ जाता है जिसमें वायरल है, वायरस है ये, तो वो भी अफेक्ट हो जाता था। द गुड न्यूज इज दैट गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, एक अच्छी बात क्या थी कि जो गवर्नमेंट्स थी पूरी दुनिया की, देशों की, पूरे वर्ल्ड में, वर्किंग अलोंग साइड द वर्ल्ड हेल्थ, उन्होंने अपने साथ मिल करके सबके साथ काम करना शुरू कर दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, WHO के साथ, आर इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन वैक्सीन रिसर्च। बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसे, डॉलर्स, पॉन्ड्स इन्वेस्ट किए गए, खर्च किए गए, ताकि दवाइयों की निजात, दवाइयों को डिस्कवर किया जा सके, बनाया जा सके और खोजा जा सके, वेदर इट इज विद द हर्ब्स और लाइक विद डिफरेंट सोर्सेज। जस्ट लाइक द सोल्जर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिस तरह से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सोल्जर्स जो है क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे पीपल को, दे मस्ट रिमेन वन स्टेप अहेड ऑफ द एनिमी कॉल्ड इन्फ्लुएंजा। सो जो सोल्जर्स थे वो एक स्टेप आगे रहते थे अपने एनिमी से, अपने शत्रु से। सो डॉक्टर्स ने, WHO ने, कंट्री के देशों ने, वर्ल्ड के देशों ने मिल करके ये सर्च आउट करना शुरू कर दिया कि इसकी वैक्सीन तैयार करनी है। एक तो जो मेडिसिन होती है, दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड, दैट इज टू बी केप्ट रेडी। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, like they wanted to be one step ahead from any sort of disease। जितना ज्यादा उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया इसके अंदर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स ने जो है कंबाइंड वर्क किया, विद द हेल्प ऑफ विच दे जस्ट ट्राइड टू control, curb the epidemic that's called the influenza, which killed half of the population of our country at that time. At that time the population was not that much, right everyone? So that's enough students for today's lecture. If any one of you wants to ask any question, you'll be given enough time to ask the questions if you find any doubt. So just see, whoever wants to ask the doubts, they just need to raise hands and the answers will be given to them. They will be helped. Thank you very much for the live session. Now the recording will be off.